لیکن اگر کوئی اس حدیث کا منکر ہے تو نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات ہی کافی ہے۔ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، محبوب یاد کیجئے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، یہ جو اذ ہے نا، اذ علماء نحو کے نزدیک یہ ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا متعلق اذکر ہوتا ہے، اذکر یاد کیجیے۔ اب میں یہاں آج کی اس محفل میں آپ کو کچھ یاد دلاؤں، میں کہوں آپ احباب یاد کیجیے اس وقت کو جب میں صوفی کانفرنس میں آیا تھا، یاد کیجیے اس وقت کو جب عاشقان اعلیٰ حضرت نے اسی شہر ممبئی میں بہت شاندار استقبالیہ دیا تھا۔ جب میں آپ سے کہوں یاد کیجئے، ریممبر دیٹ ٹائم، اس وقت کو یاد کریں۔ کوئی مجھے کہے تم کہہ رہے ہو یاد کرو اس وقت کو، لیکن کہہ اس کو رہے ہو، اس سے رہے ہو جس کا اس وقت وجود ہی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر میں سعید نوری صاحب سے کہوں یاد کیجئے اس وقت کو جب میں صوفی کانفرنس میں آیا تھا، ایک بیان کیا تھا، کچھ کہا تھا، آپ لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ کوئی اس محفل میں کھڑا ہو کے کہے ارے اس وقت تو سعید نوری صاحب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کا وجود ہی نہیں تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھئی اگر وجود ہی نہیں تھا تو یہ میرا کہنا تو لغو ہوگا نا کہ یاد کیجئے اس وقت کو۔ میرا ان سے یہ کہنا کہ اس وقت کو یاد کیجئے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس وقت تھے۔ ہاں؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس وقت نہیں تھے تو وہ مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے کہ ثاقب جھوٹ بولتا ہے، ثاقب جھوٹا ہے کیونکہ یہ کہہ رہا ہے یاد کیجئے، اس وقت تو ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ میں سہیل رکاڈیا صاحب سے کہتا ہوں یاد کیجئے اس وقت کو، تو کوئی کہتا ہے وہ اس وقت تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو ہر سمجھدار شخص کہے گا اگر ان کا وجود نہیں تھا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب یاد کیجئے عالم ارواح کی ایک کانفرنس کو، عالم ارواح میں، اسپریچول ورلڈ میں، جب ہم نے انبیاء سے ایک عہد لیا تھا، میثاق انبیاء۔ اب کوئی کہے اس وقت حضور کا وجود ہی نہیں تھا، حضور تو فقط 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، اس پیدائش سے قبل آقا کا میلاد ہی نہیں ہوا تھا، آقا کا میلاد 1400 سال پہلے ہوا، اس سے قبل آقا کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے کہ تم یہ نہیں کہہ رہے کہ آقا کا وجود 12 ربیع الاول سے پہلے نہیں تھا، 1400 سال پہلے نہیں تھا، اس سے قبل نہیں تھا۔ تمہارا یہ کہنا کہ آقا اللہ کی پہلی مخلوق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہو، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے محبوب یاد کیجئے اس وقت کو، یاد کیجئے اس وقت کو۔ کس وقت کو؟ وہ جب اسپریچول ورلڈ میں، عالم ارواح میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اللہ نے انبیاء سے ایک عہد لیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ اب دیکھیے آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے من کا، محبوب آپ سے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس میں نور سے مراد نور معنوی ہے، نور ہدایت ہے، نور حسی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس آیت پر بعد میں کلام ہوگا۔ تم کہتے ہو کہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس فزیکل مینیفیسٹیشن سے قبل تھا ہی نہیں۔ آقا آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں آئے، اس سے پہلے آقا کا وجود نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں آقا کی عظمت تو بہت بلند و بالا، بہت عرفہ و اعلیٰ، آقا کا مقام تو بہت بلند ہے۔ آپ سب موجود تھے، آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا۔ ہماری اس فزیکل مینیفیسٹیشن، فزیکل ایگزسٹنس، اس بشری ایگزسٹنس سے پہلے، اس بشری وجود سے پہلے عالم ارواح میں ہم سب موجود تھے، آپ موجود تھے، میں موجود تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ سب نے کہا تھا
कालू बला, हर एक ने कहा था। ये मीटिंग कहाँ हुई, ये कलाम कहाँ हुआ, आलमे अरवाह में हुआ। आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। और फिर कुरान करीम की इस आयत की तफसीर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं। एक सवाल पैदा होता है, आका आखिरी नबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम में यह क्यों इरशाद फरमाया मिनका, महबूब आपसे अहद लिया था। ये जो कवनेंट था, ये जो अहद था, फरमाया मिनका। सवाल पैदा होता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लेकिन हुजूर का जिक्र पहले क्यों हुआ? आका के बाद फिर नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र। जबकि आका आखिरी नबी हैं तो आका का जिक्र आखिर में होना चाहिए था। कुरान करीम की आयात की तफसीर कुरान करीम की आयात से भी होती है और हुजूर के फरमान से भी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर खुद इरशाद फरमाई। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी तफसीरी व इज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम क़ाल कुन्तु अव्वलन नबिय्यीन फिल खल्क़ि व आखिरहुम फिल बअस। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़हन में ये सवाल पैदा होता है, आका आप आखिरी नबी हैं, लेकिन आपका जिक्र पहले क्यों है और बाकी अंबिया का जिक्र बाद में क्यों है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आया कुरानिया की तफसीर खुद इरशाद फरमाई। फरमाया है मेरे उम्मतियों सुनो, हर चंद के मैं आखिरी नबी हूं, लेकिन कुरान करीम की इस आया मुबारका के हवाले से अगर तुम ज़हनी इर्तिबाक का शिकार हो, ज़हनी तशवीश का शिकार हो, तज़ब्ज़ुब का शिकार हो, ये जानना चाहते हो कि आका का नाम पहले क्यों लिया गया, तो किसी बदअकीदा से कुरान की तफसीर नहीं सीखनी, किसी गुमराह से कुरान की तफसीर नहीं सीखनी। कुरान की तफसीर सीखनी है तो किससे सीखनी है? आमना के लाल से सीखनी है, मदीने वाले से सीखनी है। कहा मैं बताता हूं, सुनो, किसी बदअकीदा के पास जाने की जरूरत नहीं। आया कुरानिया की तफसीर खुद हसनैन के नाना ने इरशाद फरमाई। फरमाया कुन्तु अव्वलन नबिय्यीन फिल खल्क़ि व आखिरहुम फिल बासी। अरे सुनो, मैं अल्लाह का पहला नबी हूं अपनी तखलीक के एतबार से और अपने ज़हूर के एतबार से आखिरी नबी हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पहले नबी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पहले नबी हैं। किस एतबार से? तखलीक के एतबार से। तो मैं कहता हूं, वो जो कहता है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, मौजू हदीस है। मैं कहता हूं उस हदीस पर कलाम बाद में करेंगे, पहले कुरान करीम की इस आयत पर गौर कर लो। जब हुजूर ने खुद तफसीर इरशाद फरमा दी कि मेरा वजूद उस वक्त था, और तुम सब भी मानते हो तुम्हारा वजूद भी था, हम सबका वजूद था आलमे अरवाह में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल अरवाह जुनूदुन मुजन्नदतुन। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये जो अरवाह है ये एक लश्कर की मानिंद है। देखिए, आप जिंदगी में किसी इंसान को देखते हैं, पहली मर्तबा देखते हैं, वो इंसान आपको अच्छा लगता है, आपको प्यारा लगता है। आप सोचते हैं यार ये बंदा मुझे क्यों अच्छा लगता है, ये क्यों प्यारा लगता है। आज से कबल मेरी इससे मुलाकात नहीं हुई, मैंने कभी इसे देखा नहीं, इससे बात नहीं की, लेकिन महसूस यूं होता है कि सदियों का रिश्ता है, महसूस यूं होता है कि मुद्दतों का रिश्ता है। एक अरसे से जानता हूं, इंसानी कल्ब में, इंसानी दिल में एक इंक्लिनेशन, एक कल्बी मैदान पैदा होता है, एक कल्बी रग़बत पैदा होती है। यार मैं इसे जानता नहीं, कभी इससे मुलाकात नहीं हुई, कभी इससे बात नहीं हुई, कभी इससे गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन क्यों ये मुझे अच्छा लगता है। उस लव को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते। अच्छा, कोई ऐसे इंसान होते हैं, हम पहली मर्तबा उनसे मिलते हैं, उन्हें देखते हैं तो नफरत महसूस होती है, अगरचे उनकी रियलिटी को हम जानते नहीं, हम समझा नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यार ये बंदा मुझे बुरा क्यों लगता है, अच्छा क्यों नहीं लगता, इसने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया, कोई नुकसान नहीं दिया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन ये मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की है। इसी को अंग्रेजी में लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। When you see someone and you fall in love with them,
and you can't explain why you're in love with that person. आप समझा ही नहीं पाते कि ये बंदा मुझे अच्छा क्यों लगता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी इस फिजिकल एग्जिस्टेंस से पहले, इस दुनिया में आने से पहले आलमे अरवाह में तुम थे, और तुम्हारी रूह आलमे अरवाह में जिसकी रूह से करीब थी, अगर जिंदगी में उससे मुलाकात हो जाए तो तुम्हें उससे प्यार हो जाता है। तुम उसे हकीकतन उस दुनिया से जानते हो। ये रिश्ता इस दुनिया का नहीं है, ये पुराना रिश्ता है, ये बहुत पुराना ताल्लुक है, ये मोहब्बतों का ताल्लुक, ये चाहत, ये उल्फत, ये इत्तिहाद, ये यूनिटी, ये या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद करने वालों का ये इज्तिमा, और ये नौजवानों का ठाठे मारता समुंदर, ये आशिकाने आला हजरत और आशिकाने सरकारे ताजु शरिया के ये दीवाने जो यहाँ मौजूद हैं, हमारा रिश्ता यहाँ का नहीं है। मैं बर्तानिया से आया हूँ, भाई तुम लगते क्या हो मेरे, तुम्हारा ताल्लुक क्या है मुझसे, कौन हो तुम? मैं कहता हूँ तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरे दिल को तुम्हारी तरफ रग़बत है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, मोहब्बत है। तुम्हारे लबों पर ये मुस्कुराहट की सजावट, ये खिलखिलाहट, ये मुस्कुराना मुझे अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हमारा रिश्ता इस दुनिया का नहीं, ये रिश्ता रिजवी बरेलवियों का, ये उस दुनिया का रिश्ता है। ये रिश्ता बड़ा पुराना है, ये रिश्ता बड़ा पुराना है, ये रिश्ता बहुत पुराना है, ये ताल्लुक बहुत पुराना है। उस दुनिया में तुम मुझे अच्छे लगते थे, शायद मैं भी तुम्हें अच्छा लगता होऊंगा। मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये मोहब्बत का ताल्लुक, ये रूह का ताल्लुक है, ये इस दुनिया का ताल्लुक नहीं। ईमान वाले मोमिनीन अगर दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए क्योंकि आलमे अरवाह में उनकी रूहें एक दूसरे से मिल चुकी है। मैं कहता हूं मोमिनीन से भी मिली है, मदीने वाले से भी मिली है। ये ताल्लुक बहुत पुराना है। अच्छा, लेकिन क्या आपको उस आलमे अरवाह की मुलाकात याद है? क्या हमें उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की मुलाकात याद है जब हम मिले थे? याद क्यों नहीं है? कुछ लोग कहते हैं चूंकि हमें याद नहीं है इसलिए शायद हम थे ही नहीं। चूंकि हमें याद नहीं जब हम मिले थे एक दूसरे से। मैं कहता हूं तुम्हें याद नहीं है इसलिए क्योंकि हमारे सूफिया फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठनी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसकी वजाहत फरमाते हैं पंजाबी जुबान में, मैं वजाहत करूंगा आपकी जुबान में भी। वो फरमाते हैं कुन फयकून जद रब फरमाया असी भी उत्थे हासे। वो फरमाते हैं जब अल्लाह ने कुन फयकून फरमाया ना तो हम भी वहां थे। जब अल्लाह ने हमें तख्लीक किया आलमे अरवाह में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उस वक्त हम मौजूद थे। फरमाया कालू बला असी कन्नी सुनिया, हमने कालू बला अपने कानों से सुना है, कोई गूंगे डोरे ना से। हम बहरे नहीं थे, हम भी मौजूद थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं उस स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस की। आप भी थे, मैं भी था, लेकिन याद क्यों नहीं आती? वो मुलाकात याद क्यों नहीं है? कहा कुन फयकून जद रब फरमाया असी भी उत्थे हासे, कालू बला असी कन्नी सुनिया, हमने अपनी कानों से सुना था, कोई गूंगे डोरे ना से। हम पहरे नहीं थे। असल मकाम ला मकान सी साडा असी आन पुतां विच फासे। हमारी हकीकत, हमारी रियलिटी एक और मकान था, एक दूसरा मकान था। ला मकान वो नहीं, अल्लाह वाला ला मकान नहीं, एक और मकान था। वो कौन सा मकान था? कहा ये वो मकान है जिसे आज तुम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी रूह इस कफस में, इस पिंजरे में, इस बुत में फंसी हुई है। कहा असल मकाम ला मकान सी साडा असी आन
बुतां विच फासे इस नफ्स पलीत पलीत जा कीता कोई असल पलीत ते ना से। इस नफ्स ने, इस पलीत नफ्स ने हमें नापाक कर दिया है। आज भी अगर तुम नफ्स की नापाकी को दूर कर दो, दिल की सियाही को दूर कर दो, दिल को पाक कर लो, खाने दिल को पाक कर लो। कहा कौनैन के वाली खुशरवे खूबा सयाहे लामका नाज़िशे हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार कर लो। तज़किया नफ्स के मराहिल तय कर लो, दिलों को चमकाओ, दिल चमकेंगे, वो आलम अरवाह की मुलाकातें याद आ जाएंगी। लेकिन दिलों को चमकाने के लिए जरूरत इस अमर की है, उस बारगाह में चले जाएं जिसका दिल पहले से चमक रहा है। वो सिखाएगा, वो बताएगा। उस बरेली के मुजाहिद की बारगाह में हाजिर हो जाओ, वो रास्ता दिखाएगा। वो कहेगा जाओ मदीने की गलियों में, मदीने वाला नजर डालेगा और फिर दिल चमकेगा और फिर तुम कहोगे हाँ हाँ अरे गुस्ताखो, तुमने कहा था दिलों को चमकाने वाला कोई नहीं है। सुनो आला हजरत ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दिलों को चमको। दिलों की दुनिया आबाद करो। हुजूर की बारगाह में अपने दिल को पेश कर दो और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नजर, और फिर दिल को देखते रहो। तो दिल को देखता रहे और पिछली रात होने दे। अल्लामा सीमाब कहते हैं तो दिल को देखता रहे और पिछली रात होने दे, जुलूसे हुस्न तेरी जलवागाह दिल से निकलेगा। मुंबई की हसीनाओं को नहीं देखना, हाँ, हराम मूवीज को नहीं देखना, निगाहों को पाक करना है, निगाहों को पाक करना है। जब रात के वक्त दिल चाहे कि कोई मूवी देख लूं, कहा नहीं, मूवी ना देख, तेरे दिल की दुनिया आबाद हो रही है। ये वक्त है जब तू दिल को देख, क्योंकि रात के वक्त तू दिल को देखता रहेगा, तज़किया कल्ब के मराहिल तय करता रहेगा, आका की बारगाह में दरूदो सलाम के गजरे निछावर करता रहेगा। फिर वो वक्त आएगा तू भी कहेगा तू दिल को देखता रहे और पिछली रात होने दे, जुलूसे हुस्न मेरी जलवागाह दिल से निकलेगा। मैं अपने दिल को यूं पेशे नजर सीमाब रखता हूं कि मेरा चांद जब निकला इसी मंजिल से निकलेगा। मेरा चांद जब निकला इसी मंजिल, मदीने का चांद जब निकला इसी मंजिल से निकलेगा। लेकिन इसके लिए जब वो चमक मिल जाती है, जब रोशनी मिल जाती है, उस नूर वाली बारगाह से जब नूर मिल जाता है, फिर इंसान नूर का इनकार नहीं करता। हम तो ओपनली कहते हैं उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम थे, और उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे पहली एग्जिस्टेंस किसकी है? हुजूर की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन को समझिए।